تو ہماری آج کی ناظمہ مشاعرہ جو ہوسٹ ہیں بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی اور بہت اچھا نام ہے راحلہ فردوس، پاکستان کی معروف میڈیا شخصیت، نیوز کاسٹر، ریڈیو پرسنالٹی، نعت خواں، سماجی کارکن اور پروڈیوسر۔ ایک بندہ اتنی چیزیں کیسے کر سکتا ہے، یہ تو خیر ہم ان سے پوچھیں گے۔ راحلہ فردوس نہ صرف میڈیا بلکہ سماجی خدمات کے میدان میں بھی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ امریکہ آنے کے بعد آپ نے پاکستانی کمیونٹی کی خدمت جاری رکھی اور مختلف رفاہی، سماجی اور ثقافتی پروگراموں میں آپ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ ایک بہترین نعت خواں ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے نیو یارک اور نیو جرسی میں خواتین کی محافل، بہت خوبصورت میلاد کی محافل جو ہے وہ آپ ان کا انعقاد کر رہی ہیں۔ بطور پروڈیوسر اور میزبان ان کا مشہور پروگرام بات سے بات راحلہ کے ساتھ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی میں بہت مقبول ہوا۔ اپنی بے مثال خدمات کے اعتراف میں راحلہ کو متعدد اعزازات، ایوارڈ اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ ایوارڈز اور اعزازات کے بارے میں میرا یہ یقین ہے، جو تھیودور روزویلٹ کا ایک قول بھی ہے اس میں، جو ہمارے محترم دوست اعزاز چودھری نے میری زندگی کا حصہ بنا دیا ایکچولی وہ، اور وہ یہ کہ سب سے بڑا ایوارڈ، ریوارڈ، اعزاز، ستائش، صلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کام دے اور آپ اسے بہت خلوص سے اور بہت احسن طریقے سے انجام دے دیں۔ وہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہی آپ کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کام دیا اور وہ آپ نے کر لیا اور بہت اچھے طریقے سے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ہماری آج کی جو میزبان ہیں، اور یقین جانے آپ کو بہت اچھا لگے گا ان سے مل کے۔ بہت ہی ملنسار، بہت ہی اچھی شخصیت کی مالک ہماری دوست راحلہ فردوس۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عرفان؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اتنی خوبصورت جو آپ نے آن لائن جو عالمی کانفرنس کی ہے اس کی مبارکباد پیش کروں گی آپ کو، آپ کے ساتھ ساتھ جو ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی، اس کے علاوہ جی اردو رائٹر سوسائٹی جو آپ کی شمالی امریکہ کی، جامعہ فاطمہ جناب رائے خواتین راولپنڈی، فرحت جبی ورک کی، آپ لوگوں کی یقیناً اتنی بڑی کوشش ہے یہ، اور آن لائن آج تک اتنا خوبصورت پروگرام اس سے پہلے شاید کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ نہیں، آج اور زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اچھا اب آپ وجہ بتائیے اس کی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم دونوں ایک ساتھ اسکرین پر ہیں۔ اچھا چلے، مجھے بھی شامل کر لیا، اچھا کیا آپ نے۔ نہیں، آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تمام جو مقالات اور تمام چیزیں، اچھا ایک اور چیز کہ جتنی بھی کانفرنس ہے یہ 2 دن کی، اس کے تمام مقالات، تمام غزلیں، تمام مشاعرے، اس کی جتنی بھی گفتگو، ادبی گفتگو اور مباحثے ہیں، یہ سب ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوں گے urduconference.org پہ۔ تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ شفل کریں یوٹیوب، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور آپ کو وہاں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ آج تمام مقالات میں نے تو لگا دی ہیں، لیکن اور بھی ساری چیزیں، آپ تھوڑا سا وقت دیجیے گا تو یہ تمام چیزیں ہماری ویب سائٹ پہ آ جائیں گی۔ اس میں آپ کی جی بتائیے۔ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت تو سوشل میڈیا پر آپ اگر کہیں پر بھی یوٹیوب پر چلے جائیں، فیس بک پر چلے جائیں، ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے بڑے تواتر سے چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہیں بلکہ بہت پسند کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، الحمدللہ۔ اور یہ جیسے میں نے کہا نا، یہی ہمارا ریوارڈ ہے کہ جب میں آپ کو بتاؤں، ایک ہم نے پروگرام کیا اور مشاعرہ تھا، اس میں ہم نے ہماری جو ایک شاعرہ ہے ہماری لاس اینجلس کی پہچان، میں انہیں کہتا ہوں آسما نشاد، تو ان کے اعزاز میں پروگرام تھا۔ تو پروگرام کے بعد جب میں اسٹیج پہ تھا اور میرے ساتھ ایک صاحب آئے، وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے عرفان بھائی آپ کے لیے بھی کوئی پروگرام کرنا چاہیے، آپ نے یہ ایوارڈ وغیرہ دیے ہیں تو آپ کو بھی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ یہاں پہ کتنے 300 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور سب کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ بالکل، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے ایک اچھی خوشی کی بات ہے، اور ایک اعزاز ہے، ایک ایوارڈ ہے، ریکگنیشن ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بالکل، اور یہی ہونا چاہیے۔
اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اعزازات کی بات کی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ اعزاز ہے ہی, لیکن سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے, ہمارے جو چاہنے والے اور ہمارے وہ لوگ جو ہماری ایسی جو ہماری کوششوں میں شامل ہو جاتے ہیں, ان کی طرف سے اگر پسندیدگی مل جاتی ہے تو یہ بھی بڑا اعزاز ہے. بالکل بالکل. ہوں, تو میرا خیال ہے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. بالکل. اوکے, تو خواتین حضرات, آپ راحیلہ کے حوالے. جی جناب, تو آج اہل علم, اہل قلم اور دنیا بھر سے اس عالمی ادبی محفل میں شریک تمام ہی سامعین کو اس عالمی مشاعرے میں راحیلہ فردوس کی طرف سے السلام علیکم. اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ادب وہ چراغ ہے جو فاصلے ختم کرتا ہے, اور شاعری وہ زبان ہے جو دلوں کو بغیر تعارف کے ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے. اور آج کی یہ خوبصورت شام, آج کا یہ خوبصورت جو محبت اور سخن کا سلسلہ ہے, اس میں مختلف ممالک سے, مختلف ذہنوں کے, مختلف احساسات اور مختلف لہجوں کے شعراء کرام اردو ادب کے افق پر جگمگا رہے ہیں. اور آج کی یہ جو دوسری عالمی آن لائن کانفرنس ہے, اس کے دوسرے روز آج اس عظیم الشان مشاعرے میں ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی, اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ اور جامعہ فاطمہ جناح برائے خواتین راولپنڈی, ان تینوں کے جو نمائندگان ہیں, عرفان مرتضیٰ, مونا شہاب اور فرحت جبین ورک, یقیناً ان تمام لوگوں کی جانب سے جو کوشش ہے اس کو آپ اور ہم سب مل کر یقیناً ستائش کی نظر سے دیکھتے ہی ہیں, اور ساتھ ساتھ اسی محفل میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. تو استقبال ہے جی ہمارے آج کے اس مشاعرے میں, جس میں کہ آج لفظ مہکیں گے, احساس بولیں گے اور شعر اپنے تمام تر حسن کے ساتھ دلوں پر دستک دیں گے. جی, ابتدائی محفل ہم یوں کرتے ہیں کہ محبتوں کی زباں ہے, ادب کی پرواز ہے, محبتوں کی زباں ہے, ادب کی پرواز ہے, یہ مشاعرہ نہیں ہے فقط دلوں کی آواز ہے. تو جی مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں, اور سب سے پہلے کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ جو نئی نسل کی نمائندہ شاعرہ ہے محترمہ نازیہ غوث, ان کا تعارف پیش کرتی چلوں کہ ان کی شاعری خیال کی دنیا میں ایک تازہ جھونکا ہے. نسائی لہجے میں تازہ کاری ان کی شاعری کا خاصہ ہے. اس نئی نسل کی نمائندہ شاعرہ سے اہل ادب نے بہت سی امیدیں وابستہ کی ہیں, کیونکہ ان کی پہلی ہی کتاب تتلی کے پر نے منظر عام پر آتے ہی اہل ادب کی توجہ حاصل کر لی ہے. ان کی شاعری دلوں پر تادیر اثر رکھتی ہے. لفظ جب دل سے نکلتے ہیں تو اثر کرتے ہیں, لفظ جب دل سے نکلتے ہیں تو اثر کرتے ہیں, ہر شعر میں ڈھلتے ہیں تو روح میں اترتے ہیں. تو آئیے نازیہ غوث کے کلام سے مستفید ہوتے ہیں. نازیہ غوث. السلام علیکم. سب سے پہلے تو اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ کے صدر جناب عرفان مرتضیٰ اور ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی روح رواں مونا شہاب صاحبہ اور فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی نگراں فرحت جبین صاحبہ کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے اپنے اس آن لائن اردو عالمی کانفرنس میں شامل کیا, اور جس کی بدولت مجھے آپ کو اپنا کچھ کلام سنانے کا موقع مل رہا ہے. تو صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے کچھ اشعار. نامکمل حادثے کو یوں مکمل کر دیا, نامکمل حادثے کو یوں مکمل کر دیا, آنکھ کی جنبش سے اس نے مسئلہ حل کر دیا. نامکمل حادثے کو یوں مکمل کر دیا, آنکھ کی جنبش سے اس نے مسئلہ حل کر دیا. کس نے یوں گلزار کی نظموں کے جادو کی طرح, کس نے یوں گلزار کی نظموں کے جادو کی طرح ایک نظر دیکھا مجھے اور پل میں بے کل کر دیا. نیند کے زندان میں رہنے دیا ہے خواب کو, نیند کے زندان میں رہنے دیا ہے خواب کو, آنکھ کھولی اور دل کا در مقفل کر دیا. اس نے منت مان کر پازیب پھینکی ایک طرف, اس نے منت مان کر پازیب پھینکی ایک طرف, پاؤں پانی میں رکھا دریا کو دلدل کر دیا. جانے کس کی یاد کا موتی گرا رخسار پر, جانے کس کی یاد کا موتی گرا رخسار پر, دل کی اس بنجر زمیں کو پل میں چل پھل کر دیا. اب چمک لوٹے گی اس کو دیکھنے کے بعد ہی, اب چمک لوٹے گی اس کو دیکھنے کے بعد ہی,
एक झलक की चाह ने आंखों को काजल कर दिया। और शेर देखिएगा कि जिंदगी तो और क्या थी, चिलचिलाती धूप थी। जिंदगी तो और क्या थी, चिलचिलाती धूप थी। मेरी अम्मी की दुआ ने सर पे बादल कर दिया। नाजिया बस नाम था और नाम भी बस आम सा। नाजिया बस नाम था और नाम भी बस आम सा। इस अधूरे नाम को उसने मुकम्मल कर दिया। आंख की जुम्बिश से उसने मसला हल कर दिया। और एक और गजल के चंद अशार कि नींद तितली है ख्वाब खुशबू है। नींद तितली है ख्वाब खुशबू है, रात का इंतसाब खुशबू है। जिसका नैमुल बदल नहीं कोई, जिसका नैमुल बदल नहीं कोई, इश्क वो कामयाब खुशबू है। मैं उसी शायरा को पढ़ती हूँ, मैं उसी शायरा को पढ़ती हूँ जिसकी पहली किताब खुशबू है। आंख को मुश्क बार कर देगी, आंख को मुश्क बार कर देगी, ख्वाब वो लाजवाब खुशबू है। फूल तो सानवी हवाला है, फूल तो सानवी हवाला है, बाग की आबोताब खुशबू है। मेरे घर में तुम्हारे आने से, मेरे घर में तुम्हारे आने से हर तरफ बेहिसाब खुशबू है। आखिरी बाब खुद शनासी है, आखिरी बाब खुद शनासी है, नज्म का पहला बाब खुशबू है। और जो छुपाने से भी नहीं छुपती, जो छुपाने से भी नहीं छुपती, इश्क ऐसी खराब खुशबू है। और मक्ता पेश करूंगी कि आप चाहें तो नाजिया बोलें, आप चाहें तो नाजिया बोलें, वरना मेरा खिताब खुशबू है। और बस आखिर में आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप चाहें तो नाजिया बोलें, आप चाहें तो नाजिया बोलें, वरना मेरा खिताब खुशबू है। क्या बात है जी। और साथ ही कहती हैं कि मैं उसी शायरा को पढ़ती हूँ जिसकी पहली किताब खुशबू है। नाजिया गौस, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, साथ साथ क्योंकि अब हमारा ये सिलसिला तो शुरू हो चुका है, मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे आज के इस अदबी सफ़र में जो हमारे मुशायरे की सदारत फरमा रही हैं वो हैं जी मोहतरमा फरहत जबी विर्क, और मेहमान खुसूसी हैं जनाब वसीम नक्काश साहब। अच्छा, ये दोनों ही बड़े आपके जाने पहचाने नाम हैं। डॉक्टर फरहत जबी विर्क जो है फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की शोबा उर्दू की चेयरपर्सन है और एक मुमताज़ मुहक्किका, नक्काद, शायरा और उस्ताद की हैसियत से इल्मी और अदबी हलकों में निहायत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखी जाती हैं। इनका दीगर तारुफ भी चलता रहेगा। और वसीम नक्काश साहब भी माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत नामवर शायर हैं। तो हमारे आज के इस मुशायरे में हमारे साहिब सदर और मेहमान खुसूसी के तारुफ के बाद मैं चाहूंगी कि हमारे पास जो हमारी अगली शायरा हैं उनको भी हम दावत कलाम दे दें, और वो है जी अमेरिका की रियासत शिकागो में। ये मारूफ शायरा हैं जिनका खूबसूरत कलाम अब आप सुनेंगे। इनकी शायरी खालिस निसाई लहजे की नुमाइंदा शायरी है। पिछले 25 वर्षों में शुमाली अमेरिका के मुशायरों में उन्होंने अपनी पुरतासीर शायरी से अपना नुमाया मकाम बनाया है और ख़ास तौर पर शहर शिकागो की अदबी तकारीब में इनकी इंतज़ामी सलाहियतों को तारीफ़ी कलिमात से नवाजा जाता है। और हाल ही में ताहिरा रिदा का पहला शेरी मजमुआ सब शेर तेरे नाम के उन्वान से शाया हुआ है, जिसको कि खास आम में बहुत पसंदीदगी की नज़र से देखा जा रहा है। दावत कलाम है मोहतरमा ताहिरा रिदा से, जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताहिरा रिदा आपकी खिदमत में। सबसे पहले मैं दूसरी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन जनाब इरफान मुर्तज़ा साहिब, जो कि उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमरीका के रूह रवां हैं, अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC की रूह रवां मोना शहाब साहिबा, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की निगरान शोबा उर्दू ज़बान व अदब डॉक्टर फरहत जबीन विर्क साहिबा को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और इसके साथ साथ उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इसमें शामिल किया, और मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। कुछ अशार आपकी खिदमत में कि ना कोई शिकवा किया ना ताना दिया है मुझको, ना कोई शिकवा किया ना ताना दिया है मुझको,
घने दरख्तों ने सिर्फ साया दिया है मुझको। तमाम असलाफ मेरी सूरत में जी रहे हैं, किसी ने आंखें किसी ने चेहरा दिया है मुझको। और एक गज़ल के कुछ अशार के, बहुत नर्मो मुलायम है तुम्हारे प्यार की खुशबू, बहुत नर्मो मुलायम है तुम्हारे प्यार की खुशबू, उतर जाती है जानो दिल में इस पिंदार की खुशबू, फजा में फैल जाती है बिना देखे बिना सोचे, बहुत मध्यम सी होती है मगर किरदार की खुशबू। मुझे फूलों की खुशबुएं बहुत मशहूर करती हैं, मुझे फूलों की खुशबुएं बहुत मशहूर करती हैं, मगर हर फूल से अच्छी तेरे दीदार की खुशबू, और मेरी बस्ती के हर एक नौजवान को खींच लेती है, मेरी बस्ती के हर एक नौजवान को खींच लेती है, किसी कोहे निदा जैसी समंदर पार की खुशबू। और कई तानी सी लहजे शेर में रस घोलते देखे, कई तानी सी लहजे शेर में रस घोलते देखे, अलग पाई मगर परवीन के अशआर की खुशबू, और वो जिसके बाद दुनिया आपको तस्लीम करती है, वो जिसके बाद दुनिया आपको तस्लीम करती है, बहुत ही खुशनुमा होती है उस इनकार की खुशबू। और रिदा ऐसा भी होता है वो रिश्ते टूट जाते हैं, रिदा ऐसा भी होता है वो रिश्ते टूट जाते हैं, जिन्हें हम दे नहीं पाते कभी इजहार की खुशबू, जिन्हें हम दे नहीं पाते कभी इजहार की खुशबू। और मेरी इस पहले शेरी मजमूरे में से एक और गज़ल आपकी खिदमत में कि हर जगह यूसुफ़ कनआन कहाँ मिलता है, हर जगह यूसुफ़ कनआन कहाँ मिलता है, हर कुएं को कोई मेहमान कहाँ मिलता है, और कुछ को मिल जाते हैं कोहकाफ में रहने वाले, कुछ को मिल जाते हैं कोहकाफ में रहने वाले, हर परिवश को परिस्तान कहाँ मिलता है, और वो कहाँ जश्न को मिलजुल के मनाने वाले, वो कहाँ जश्न को मिलजुल के मनाने वाले, रक्स करना हो तो दालान कहाँ मिलता है। और खाली दामन भी खुशी से कई चल पड़ते हैं, खाली दामन भी खुशी से कई चल पड़ते हैं, सबको जाते हुए सामान कहाँ मिलता है, और दिल में जब चाहे चला आता है हंसता गाता, दिल में जब चाहे चला आता है हंसता गाता, आमदो रफ्त पे तावान कहाँ लगता है। और अब तो गूगल से सभी राह संभल लेते हैं, अब तो गूगल से सभी राह समझ लेते हैं, जाने भटका हुआ इंसान कहाँ मिलता है। और अश्क पहुँचे हैं अभी उसने किसी बच्चे के, अश्क पहुँचे हैं अभी उसने किसी बच्चे के, आपने पूछा था भगवान कहाँ मिलता है। और ना वो बिल्किस न शीशे के दरो बाम रिदा, ना वो बिल्किस न शीशे के दरो बाम रिदा, यूं भी अब तख्ते सुलेमान कहाँ मिलता है। और जाते जाते एक शेर उन सब लोगों के नाम जो अपने मुल्क से दूर हैं कि रिदा इस नारसाई में तवाज़ुन हो नहीं पाता, रिदा इस नारसाई में तवाज़ुन हो नहीं पाता, यहाँ रहते हैं और सांसें समंदर पार लेते हैं। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। मुंतज़मीन कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर मुबारकबाद। इजाज़त दीजिए। ताहिरा रिदा। क्या बात है ताहिरा रिदा, बहुत खूबसूरत अंदाज़ बयां। और रिदा ऐसा भी होता है वो रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम दे नहीं पाते, इजहार की खुशबू। इजहार की बड़ी अहमियत है। और साथ मैंने ये देखा
कि खुशबू की तरह जो हमारे शुराए कराम हैं उनका कलाम भी बिखरता जा रहा है। यकीनन आप तमाम लोगों को जो हमें आज इस आलमी मुशायरे में देख और सुन रहे हैं, आज के इस खूबसूरत मुशायरे के जो शुराए कराम हैं इनका कलाम भी पसंद आ रहा होगा। और ये जो सिलसिला है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का, इसके इस सिलसिले में जो हमारा इस वक्त का सिलसिला है और वो है मुशायरा। और ये हमारे इस मुशायरे के अंदर जो है बहुत सारे जो यूं तो शुराए कराम हैं दुनिया भर से, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन के हर खित्ते का अपना ही जुदा गाना रंग होता है। इस आलमी मुशायरे के जो अगले शायर हैं शोएब अदन, इनका ताल्लुक मलकवाल मंडी बहाउद्दीन से है। एक इल्मी, अदबी और तख्लीकी मिजाज रखने वाली शख्सियत है जो अपने ख्यालात, आवाज़ और कलम के ज़रिए मुआशरे में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि ये मंडी बहाउद्दीन के पहले पॉडकास्टर हैं और इसी वजह से इन्हें जिद्दत पसंदी के हवाले से सोच और जदीद दौर से हम आहंग शख्सियत के अक्कास के तौर पर भी देखा जा सकता है। आइए अब हम और आप मिलकर सुनते हैं जी शोएब अदन से उनका कलाम क्या कहते हैं। अदबी मरकज वाशिंगटन डीसी की रूह रवां मोहतरमा मुन्ना शहाब और उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका के सदर जनाब इरफान मुर्तजा साहब और डॉक्टर फहद जबी मुजरत सदर शोबा उर्दू फातिमा जनाब यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के शुक्रिया के साथ मुझे दूसरी ऑनलाइन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में अपना कलाम पेश करने का एजाज हासिल हो रहा है। एक गजल के कुछ अशार जिसके रूप स्वरूप की धूप से हर जानिब हरियाली है, आज तो शाह ने वो लड़की भी रस्ते से उठवा ली है। दूर कहीं अंधियारे में एक जीप का इंजन जाग उठा, पास कहीं कुछ कुत्ते भौंके, उसने चीख दबा ली है। शाम ने अपना खेमा गाड़ा वक्त की उथली छाती पर, और किसी दरवेश ने अपनी तीस बदन में ढाली है। सांझ समय के झिलमिलता में कौन सबा ये कहती थी, यूं बादल के गाल न खींचो आगे शाम गुलाली है। एक तरफ के दिल में उसकी यादें और कुछ कचरा है, एक तरफ का दिल जो है वो आज भी वैसा खाली है। लौट आएंगे शाम होने तक, यानी गिरिया तमाम होने तक, वो किसी और की न हो जाए, मेरा दुनिया में नाम होने तक। मतलबी हैं हमारे यार सभी, प्यार होता है काम होने तक। एक लम्हे का फासला है अदन, एक लम्हे का फासला है अदन, खास होने से आम होने तक। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी, क्या फासला बताया है जी, खास से आम होने तक। बहुत खूबसूरत इनका अंदाज़े बयां। और अब हमारे पास जो हमारे अगले शायर हैं वो हमारे पाकिस्तान कराची से हैं, यासिर सईद सिद्दीकी साहब। अहद हाजिर के उन शुरा में इनका शुमार होता है जो अपने मुनफरिद असलूब और दिलनशीं तर्ज इजहार की वजह से अदबी हलकों में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। इनकी शायरी में जज्बात की गहराई, फिक्र की पुख्तगी और लफ्ज़ों की खूबसूरती नुमायां है। अपने अशार के ज़रिए इंसानी एहसासात, मुआशरती हकीकतों और मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं को नहायत मुहस्सर अंदाज में पेश करते हैं और यासिर सईद सिद्दीकी की शायरी कायरी को सोचने पर मजबूर कर देती है। अपने दिलों पर देर तक असर रखने के लिए आइए हम सब सुनते हैं यासिर सईद सिद्दीकी से ऑनलाइन मुशायरे में उनका कलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर सईद। आप खूबसूरत समातों की नज़र पहले कता उर्दू से मोहब्बत करने वालों की नज़र और उसके बाद एक गज़ल से कुंज शायद देखिएगा कि देखो इतना सा काम करता हूं मैं, मोहब्बत को आम करता हूं। देखो इतना सा काम करता हूं मैं, मोहब्बत को आम करता हूं।
जो भी करता है बात उर्दू में उसको बढ़कर सलाम करता हूं। अब एक गजल से चंद शेर देख लीजिए कि बहुत खुलूस बहुत प्यार से सजाया दिल, बहुत खुलूस बहुत प्यार से सजाया दिल, किसी को देखा तो मेरा भी मुस्कुराया दिल। मैं जानता हूं मोहब्बत में हार जाऊंगा, मैं जानता हूं मोहब्बत में हार जाऊंगा, इसीलिए तो किसी से नहीं लगाया दिल। और संभाल रखा है मैंने बहुत सलीके से, संभाल रखा है मैंने बहुत सलीके से, धड़क रहा है जो सीने में ये पराया दिल। और तुम्हारे शहर में जब रोशनी जरूरी थी, तुम्हारे शहर में जब रोशनी जरूरी थी, तुम्हारे शहर में मैंने भी था जलाया दिल। और शेर देखें कि कोई तो है जो मेरे साथ साथ चलता है, कोई तो है जो मेरे साथ साथ चलता है, किसी ने तो मेरे दिल से चलो मिलाया दिल। और कल एक तबीब ने देखा तो चौंक उठा वो, कल एक तबीब ने देखा तो चौंक उठा वो, खराब क्या है मुझे देखकर बताया दिल। और आखिरी शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा कि तुम्हारे बाद मोहब्बत से हो गई नफरत, तुम्हारे बाद मोहब्बत से हो गई नफरत, तुम्हारे बाद किसी से नहीं लगाया दिल। बहुत खुलूस बहुत प्यार से सजाया दिल, किसी को देखा तो मेरा भी मुस्कुराया दिल। मैं जानता हूं मोहब्बत में हार जाऊंगा, इसीलिए तो किसी से नहीं लगाया दिल। बहुत शुक्रिया। यासिर सईद, कराची, पाकिस्तान से। क्या बात है जी। यासिर सईद सिद्दीकी कहते हैं कि देखो इतना सा काम करता हूँ, देखो इतना सा काम करता हूँ, मैं मोहब्बत को आम करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो इनका इजहार ख्याल है उसमें संभाल रखा है मैंने बहुत सलीके से दिल, संभाल रखा है मैंने बहुत सलीके से दिल, धड़क रहा है जो सीने में ये पराया दिल। क्या बात है जी, वाह, बहुत खूब। और अब हमारे पास पाकिस्तान से ही नईम रजा भट्टी हमारे मुशायरे के अगले शरीक हैं, जिनका ताल्लुक भी मंडी बहाउद्दीन से है। नईम हल्क़े अरबाब ज़ौक़ मंडी बहाउद्दीन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, नामवर शायर हैं, कोहना मश्क अदीब हैं, कॉलम निगार हैं और आलमी सतह पर उर्दू मुशायरों की एक नुमायां आवाज़ हैं। इनकी शायरी क्लासिकी रवायत की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए जदीद फिक्री तकाज़ों से हम आहंग नजर आती है, जिसकी बदौलत वो असर आज़िर के मोतबर शोरा में शुमार होते हैं। इनका पहली शेरी मजमुआ 2019 में इकान के नाम से शाया हो चुका है। अपने मुनफरिद लहजे और असलूब के साथ ऑनलाइन महफिल में अब शरीक हो रहे हैं नईम रजा भट्टी। मोहतरम इरफान मुर्तज़ा, मोना शहाब साहिबा और फरोज जबीन साहिबा की दावत पे 2 गज़लें पेश खिदमत हैं। रहज़न की भाग दौड़ से रास्ता समेट कर लाया हूँ फिर से राह पे धोखा समेट कर, मैं जिस जहां में रोशनी बनकर बिखर गया, लाऊं वहां से तेरे लिए क्या समेट कर। खलवत में क्यों हो गैर की मौजूदगी का रंग, मेरे हुजूर पेश हो जलवा समेट कर। तुझसे मेरा वजूद संभाला न जा सका, मैंने तेरा गुबार भी रखा समेट कर। रद्दे बलाए खौफ थी मेरी तलब रजा, मैंने सिरहाने रख लिया कासा समेट कर। अपनी तन्हाई के हिसार में है, मौत खलकत के इंतजार में है। एक तो है शदीद वीरानी, और क्या क्या मेरे गुबार में है।
इन दिनों नींद का दरिंदा भी मेरी आंखों के इख्तियार में है, बदगुमानी को ये खबर ही नहीं कैसी तस्कीन एतबार में है। कम नहीं है सुखन की कम कोशी, सारी वुसअत ही इख्तिसार में है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे नईम रज़ा भट्टी साहब ने अपने मखसूस अंदाज में जो है वो अपने अशार पेश किए हैं, और साथ साथ हमारे पास देखें, जैसा कि आपको पता है कि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें आज जो मुशायरा है इसमें हमारे साथ दुनिया भर से मुख्तलिफ शुराए कराम तो हैं ही, लेकिन हमारे पास अमेरिका से, हमारी रियासत ह्यूस्टन से हमारे अगले जो शायर हैं अदील जैदी हैं। ये एक बासलाहियत और खुश फिक्र शायर हैं जिनकी शायरी में मोहब्बत, एहसास, जिंदगी के तजुर्बात और मुआशरती मौज़ूआत की खूबसूरत अक्कासी मिलती है। इनके अंदाज़े बयां में सादगी भी है और गहराई भी, जो सामीन और क़ारीन के दिलों पर असर छोड़ती है। अदील जैदी अपनी मुनफरिद तर्ज इजहार और खूबसूरत लफ्जियात के बायस अदबी हलकों में कदर की निगाह से देखे जाते हैं और ह्यूस्टन अमेरिका में अदबी सरगर्मियों में पेश ही रहते हैं। आइए सब मिलकर कलाम सुनते हैं अदील जैदी से। खान भाई अस्सलाम वालेकुम। आपके हुक्म की तामील एक गजल आपके नाजरीन के लिए, सामीन के लिए और उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरोखा के लिए कि हरीफे जां की तरफदारियां तो होनी हैं, हरीफे जां की तरफदारियां तो होनी हैं, सियासतों में रियाकारियां तो होनी हैं। हरीफे जां की तरफदारियां तो होनी हैं, सियासतों में रियाकारियां तो होनी हैं। और शियाने हक की तरफ आओ पर ख्याल रहे, शियाने हक की तरफ आओ पर ख्याल रहे कि इस तरफ जरा दुश्वारियां तो होनी हैं। जो वक्त जितना गुजर जाए साथ बेहतर है, जो वक्त जितना गुजर जाए साथ बेहतर है। फिर एक दिन मियां तन्हाइयां तो होनी हैं और हम अपनी सोहबतें रस्मों रिवाज छोड़ आए, हम अपनी सोहबतें रस्मों रिवाज छोड़ आए। दयारे गैर है गुस्ताखियां तो होनी हैं। किसी पे तबसरा कैसा तुम अपने चाक सियो, किसी पे तबसरा कैसा तुम अपने चाक सियो, करोगे ऐसा तो रुसवाइयां तो होनी हैं। और यहां पे दावे दानाई किसको है साहिब, यहां पे दावे दानाई किसको है साहिब। हम आदमी हैं तो नादानियां तो होनी हैं। और नया जमाना, नए लोग हैं, नई तहजीब, पुराने लोगों को हैरानियां तो होनी है। हम आ गए हैं गुलिस्तान रंगोबू में अदील, हम आ गए हैं गुलिस्तान रंगोबू में अदील। हमारे साथ ये गुलकारियां तो होनी हैं। हरीफे जां की तरफदारियां तो होनी हैं, सियासतों में रियाकारियां तो होनी हैं। एक नज्म उन्वान है प्यार करते रहो, प्यार करते रहो उन्वान। सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। चाहे बोले ना वो, लब को खोले ना वो, दिल अलग बात है अपने लहजे में भी प्यार घोले ना वो। अपना जो फर्ज है इस तरह हो अदा जैसे कर्ज है, अपना जो फर्ज है इस तरह हो अदा जैसे एक कर्ज है। कोई जो कुछ कहे उसकी सुनते रहो,
प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। बेख्याली में ही लब अगर खुल गए और ज़बां पर कभी कोई सच आ गया, यूं समझ लो कि फिर सिलसिले जितने थे दरमियान जो भी था, ख्वाब देखे थे जो, सब बिखर जाएंगे। ऐसा करना नहीं, सबकी सुनना मगर तुम बिखरना नहीं। मसले सबके सब हैं सफेदो सियाह, मसले सबके सब हैं सफेदो सियाह, मसलों में कभी रंग भरना नहीं। दिल में गर प्यार हो, लब पे इकरार हो, प्यार ही प्यार बस हरफे इजहार हो, करना ये कहे दिल न मिल पाएंगे, उसमें मत जाइए। खोटी है ये अना, खोटी है ये अना, इससे कुछ ना बना। दिल की बातें सुनो, फासले से सही, फासले से सही प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। रास्ता एक है, मुद्दा एक है, एक हमारा ही क्या, सारी दुनिया का ही सिलसिला एक है। एक आए थे हम, एक आए थे तुम, एक है ये सफर, भीड़ कितनी भी हो, अपनी अपनी जगह हर कोई एक है। अपनी अपनी जगह हर कोई एक है, नाम है गो जुदा पर खुदा एक है। बस खुदा की तरह सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। आखिरी बंद है नज्म का के कहने सुनने से तो कुछ बदलता नहीं, दिन ठहरता नहीं, रात जाती नहीं, दिन ठहरता नहीं, होने वाला है क्या कुछ भी खुलता नहीं। वक्त कम है बहुत, वक्त कम है बहुत, इतने कम वक्त में जिस कदर कर सको प्यार करते रहो और कुछ ना कहो, और कुछ ना कहो। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। प्यार करते रहो, सबकी सुनते रहो और कुछ ना कहो। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत पैगाम भी था इनके कलाम में कि प्यार की ज़बान ही सबसे खूबसूरत ज़बान है। और एक बार फिर मैं तमाम ही देखने वालों को बताती चलूँ कि आज इस वक्त आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC इरफान मुर्तज़ा, उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका मोना शहाब और जामिया फातिमा जिन्ना बराए ख़वातीन रावलपिंडी फरहत जबीन वर्क के इस खूबसूरत काविश में हम और आप मौजूद हैं आज इस खूबसूरत मुशायरे में, जिसके मैं समझती हूँ कि जिसकी खूबसूरती ये है कि दुनिया भर से आलमी कॉन्फ्रेंस होने की वजह से मुख्तलिफ शुराए कराम हमारे साथ इस मुशायरे में शामिल हैं। तो अब हमारी अगली शरीक जो शायरा हैं उनको मैं दावत कलाम दूंगी कि जिनकी सोच कभी लफ्ज़ों का रूप धार कर शेर में ढल जाती है और कभी रंग बनकर कैनवस पर सोच की अक्कासी करती है। शेर व अदब की दुनिया में शाइस्ता मुफ्ती का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। शाइस्ता अपनी तख्लीकी सलाहियतों के लिहाज से एक हमाजहत शख्सियत हैं, एक खूबसूरत हसास शायरा और कायनात के हर रूप को रंगों से उजागर करने वाली उम्दा मुसव्विरा। इनकी शायरी की 3 किताबें और अफसानों की एक किताब मंजर आम पर आकर अहले अदब से पसंदीदगी की सनद हासिल कर चुकी है और इनके अशार ऐसे अशार हैं जो दिलों में देर तक गूंजते रहते हैं। आइए शाइस्ता मुफ्ती की ज़बानी उन्हीं का कलाम सुनते हैं और उससे महजूज होते हैं। शाइस्ता मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता मुफ्ती है और अमेरिका में जो एक दूसरी आलमी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है उसमें मैं अपना कलाम लेकर हाजिर हुई हूँ। और ये कॉन्फ्रेंस जिसका एहतमाम उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका के सदर जनाब इरफान मुर्तज़ा और अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC की रूह रवां जनाब मोहतरमा मोना शहाब और फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू की निगरां मोहतरमा फरहत जबीन विर्क, इनके ताउन से, ये कलमी ताउन से और एफर्ट्स की वजह से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। पिछले साल भी मैं इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी और इस साल भी मेरी खुशनसीबी है कि मैं इसमें मौजूद हूँ। और इस कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी नज़म पेश करना चाहूँगी कि बदलते मौसम की आहटों में अगर कभी मेरा सामना हो,
بدلتے موسم کی آہٹوں میں اگر کبھی میرا سام نہ ہو، گزر ہی جانا نگاہ چرا کر، نہ لب ہلانا نہ ہاتھ رکھنا اگر تمہیں دل تھام نہ ہو۔ کہ ایسا ہوتا ہے چاہتوں میں، کہ ایسا ہوتا ہے چاہتوں میں، محبتوں کے عجیب رشتے، جدائیوں کے عمیق لمحے سنورتے جاتے ہیں دوریوں میں۔ یہی سمجھنا کہ تم سے میرا یہی ہے رشتہ، کہ جیسے شبنم کا پھول سے ہے، کہ جیسے آنسو کا آنکھ سے ہے۔ گزرتی عمروں میں چاہتوں کی حسین یادیں، یہی فقط چاہ کا ہے تحفہ، تلاش کرنا ہماری خوشبو۔ چٹکتی کلیوں کی ساعتوں میں رنگ بن کر تمہیں ملوں گی، بدلتے موسم کی آہٹوں میں۔ بہت شکریہ۔ کہ صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، تمہارے بعد میرے رابطے میں کوئی نہیں۔ میں پھول بن کے کھلوں اور پھر بکھر جاؤں، میں پھول بن کے کھلوں اور پھر بکھر جاؤں، کسی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے میں کوئی نہیں۔ بہار آئے گی اور پھر سجے گا گلشن بھی، ہمارے خواب کے اس دائرے میں کوئی نہیں۔ بچھڑ کے ملنا بچھڑ جانا پھر صدا کے لیے، بچھڑ کے ملنا بچھڑ جانا پھر صدا کے لیے، ذرا سا غور کرو فائدے میں کوئی نہیں۔ اکیلے شام سے پھرتے ہیں سر پہ رات آئی، اکیلے شام سے پھرتے ہیں سر پہ رات آئی، سہانی رات ہے اور رت جگہ میں کوئی نہیں۔ بڑے وثوق سے تنکوں کو جوڑ رکھا تھا، بڑے وثوق سے تنکوں کو جوڑ رکھا تھا، عجب نصیب کے اس اب گھونسلے میں کوئی نہیں۔ کہاں گئے ہیں وہ یاران خوش خصال کے اب، کہاں گئے ہیں وہ یاران خوش خصال کے اب، ڈھلی ہے رات مگر میں کدے میں کوئی نہیں۔ کیا بات ہے جی، بہت خوبصورت۔ صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، تمہارے بعد میرے رابطے میں کوئی نہیں۔ بہت خوبصورت جی۔ اس وقت شائستہ مفتی کو آپ سن رہے تھے، اور اب ہمارے پاس یہ اگلے جو شاعر ہیں عمار اقبال، ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ 2015 میں آپ کا پہلا مجموعہ پرندگی کے نام سے شائع ہو کر داد و تحسین حاصل کر چکا ہے، جبکہ دوسرا شعری مجموعہ منج روپ کے نام سے شائع ہوا، جس کو ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا۔ ان کی لندن، ہندوستان اور پاکستان سے اردو، انگریزی اور ہندی میں فلسفہ، فکشن اور شاعری جیسی اہم اصناف پر 10 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ شعبہ درس و تدریس اور ریڈیو سے بھی منسلک رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں عمار اقبال کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ عمار اقبال۔ السلام علیکم، میں عمار اقبال۔ دوسری آن لائن اردو کانفرنس کے لیے ایک تازہ غزل کا حکم ہے۔ منتظمین کانفرنس جناب بہت محترم عرفان مرتضیٰ صاحب، اردو رائٹرز سوسائٹی شمالی امریکہ، مونا شہاب صاحبہ اور فرحت جبین صاحبہ، میں غزل پیش کرتا ہوں کہ رائے گانی کی تصویر ہے یا خبر جاویدانی کی ہے، پھول کاغذ کا ہے۔ رائے گانی کی تصویر ہے یا خبر جاویدانی کی ہے، پھول کاغذ کا ہے۔ وقت بارش کا ہے، جسم مٹی کا ہے، آنکھ پانی کی ہے، پھول کاغذ کا ہے۔ رائے گانی کی تصویر ہے یا خبر جاویدانی کی ہے، پھول کاغذ کا ہے۔ وقت بارش کا ہے، جسم مٹی کا ہے، آنکھ پانی کی ہے، پھول کاغذ کا ہے۔ جھیل شیشے کی ہے، چاند پتھر کا ہے۔ جھیل شیشے کی ہے، چاند پتھر کا ہے، میں محبت ہوں اور سخت مشکل میں ہوں۔ جھیل شیشے کی ہے، چاند پتھر کا ہے، میں محبت ہوں اور سخت مشکل میں ہوں۔ خوف پرجا کا ہے، باغ راجا کا ہے، رات رانی کی ہے، پھول کاغذ کا ہے۔ میں روایت کا ہوں، تو بغاوت کی ہے، میں مروت کا ہوں، تو شکایت کی ہے۔ میں روایت کا ہوں، تو بغاوت کی ہے، میں مروت کا ہوں، تو شکایت کی ہے۔ تو میرا خواب ہے، میں حقیقت میں ہوں، تو کہانی کی ہے، پھول کاغذ کا ہے۔ ایک سے ایک نایاب و نادر یہاں،
अपने मौसम में खिलता है मुरझाता है। एक से एक नायाब व नादिर यहाँ अपने मौसम में खिलता है मुरझाता है। ऐसे में मुस्तकिल जिसको शर्मिंदगी सख्त जानी की है फूल कागज का है। ऐसे में मुस्तकिल जिसको शर्मिंदगी सख्त जानी की है फूल कागज का है। इसका मतलब कोई खास मतलब नहीं, कोई माना नहीं, यानी कुल जिंदगी एक फसुर्दा तलब रंज लायानियत के मुआनी की है, फूल कागज का है। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब इरफान मुर्तजा साहिब के हुक्म पर गजल पेश करता हूँ कि ठीक इसी यकीन पर शर्त लगाएं साहिबा, ठीक इसी यकीन पर शर्त लगाएं साहिबा, जीत न जाएं साहिबा, हार न जाएं साहिबा, एक गुमान के सिवा किससे दुआ सलाम है, एक गुमान के सिवा किससे दुआ सलाम है, कौन जो हम कलाम है, और सुनाएं साहिबा लम्स की हसरतों में नीच जिस्म की सरहदों के बीच, लम्स की हसरतों में नीच जिस्म की सरहदों के बीच, जाग के थक रहे हैं हम, ख्वाब दिखाएं साहिबा, जाग के थक रहे हैं हम, ख्वाब दिखाएं साहिबा, ज़ब्त बदामने रसा अश्क बअर्ज़ मुद्दआ, ज़ब्त बदामने रसा अश्क बअर्ज़ मुद्दआ, आपकी फिक्र है मुझे भीग न जाएं साहिबा, आपके दम से आबरू पाए जहाने रंगो बू, आपके दम से आबरू पाए जहाने रंगो बू, खुशबू लुटाएं साहिबा, रंग छुपाएं साहिबा, बाग के सब गुलों का शहद, दूध की ठंडी ठार नहर, बाग के सब गुलों का शहद, दूध की ठंडी ठार नहर, आपके दाएं साहिबा, आपके बाएं साहिबा, एक गुमान के सिवा किससे दुआ सलाम है, कौन जो हम कलाम है, और सुनाए साहिबा। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी, मुनफरिद लहजा, मुनफरिद अंदाज, बहुत खूबसूरत शायरी हमारे इकबाल को आप सुन रहे थे। और अब हमारे पास जिन शायर को मैं दावत कलाम दे रही हूँ उनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है। जी हाँ, जनाब कामरान नफीस। इन्होंने शायरी की इब्तिदा 1995 में कॉलेज के मुशायरों से की। अपनी हसास सोच और पुरअसर शायरी के सबब शेरी मंजरनामे पे अपनी पहचान बनाते चले गए। काफी अरसा मुल्क से बाहर बहरीन में रहे। अदबी तंजीम फरोग अदब बहरीन के बानी अरकान में भी शामिल रहे। कामरान नफीस उम्दा लबो लहजे के शायर हैं। आइए इनसे इनका कलाम सुनते हैं। कामरान नफीस। आदाब अर्ज़ है, मैं कामरान नफीस बहुत ममनून हूँ आपने मुझे अपने इस मशायरे में मदऊ फरमाया। यहाँ मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमरीका के सदर जनाब इरफान मुर्तज़ा का, अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC की रोहरवा मुहतरमा मोना शहाब और फातिमा विमन यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू की निगरान मुहतरमा फरहत जबीन वरक साहिबा का गजल का मतला पेश कर रहा हूं। मैंने अर्ज किया है कि फिर ना आंखों में रही बेसरो सामानी कुछ, फिर ना आंखों में रही बेसरो सामानी कुछ, आई जब रात गए मौज में तुग़यानी कुछ, फिर ना आंखों में रही बेसरो सामानी कुछ, आई जब रात गए मौज में तुग़यानी कुछ, अपने जैसा न मिला कोई तो आवारा फिरे, अपने जैसा न मिला कोई तो आवारा फिरे, फिर हमें भा गई इस शहर की वीरानी कुछ, अपने जैसा न मिला कोई तो आवारा फिरे, फिर हमें भा गई इस शहर की वीरानी कुछ, इतना आसा तो न था उसकी तरफ चल देना,
इतना आसान तो न था उसकी तरफ चल देना, उस तरफ हमको बहम थी मगर आसानी कुछ। इतना आसान तो न था उसकी तरफ चल देना, उस तरफ हमको बहम थी मगर आसानी कुछ। रुत जो गदराई तो शाखों ने हवा से ये कहा, रुत जो गदराई तो शाखों ने हवा से ये कहा, बेलिबासी है कुछ और है उरियानी कुछ। रुत जो गदराई तो शाखों ने हवा से ये कहा, बेलिबासी है कुछ और है उरियानी कुछ। बेलिबासी है कुछ और है उरियानी कुछ। दिल ये कहता है कहाँ इश्क कहाँ खाके दमिश्क, दिल ये कहता है कहाँ इश्क कहाँ खाके दमिश्क। कहत में भी मुझे हासिल थी फरावानी कुछ। दिल ये कहता है कहाँ इश्क कहाँ खाके दमिश्क। कहत में भी मुझे हासिल थी फरावानी कुछ। रंग उड़े या न उड़े रंग बिखरते हैं जरूर, रंग उड़े या न उड़े रंग बिखरते हैं जरूर। हफ्स में और भी बढ़ती है परेशानी कुछ। रंग उड़े या न उड़े रंग बिखरते हैं जरूर। हफ्स में और भी होती है परेशानी कुछ। हफ्स में और भी होती है परेशानी कुछ। घर पहुंचकर जो थकन उतरी तो देखा मैंने, घर पहुंचकर जो थकन उतरी तो देखा मैंने। सरे आईना था कुछ और सरे हैरानी कुछ। घर पहुंचकर जो थकन उतरी तो देखा मैंने। सरे आईना था कुछ और सरे हैरानी कुछ। रंग उड़े या न उड़े रंग बिखरते हैं जरूर। हफ्स में और भी होती है परेशानी कुछ। और खाक इस शहर में ऐसे तो न उड़ती थी मगर, खाक इस शहर में ऐसे तो न उड़ती थी मगर। ये जो आया है यहाँ गौले बयाबानी कुछ। खाक इस शहर में ऐसे तो न उड़ती थी मगर, ये जो आया है यहाँ गौले बयाबानी कुछ। आज फिर वादा निभाने को मैं निकला हूं नफीस, आज फिर वादा निभाने को मैं निकला हूं नफीस। आज फिर मुझको हुआ शौक़े पशेमानी कुछ। आज फिर वादा निभाने को मैं निकला हूं नफीस। आज फिर मुझको हुआ शौक़े पशेमानी कुछ। फिर ना आंखों में रही बेसरो सामानी कुछ। आई जब रात गए मौज में तुग़यानी कुछ। एक गजल का एक और गजल पेश खिदमत है, उसका मतलब किया है कि नजर में दिल था हमेशा सरे मुसाफते इश्क, नजर में दिल था हमेशा सरे मुसाफते इश्क। जुनून तलक ही लिहाजा मिली इजाजत इश्क। नजर में दिल था हमेशा सरे मुसाफते इश्क। जुनून तलक ही लिहाजा मिली इजाजत इश्क। खते शकस्ता में क्या जाने क्या कशीद आ जाए, खते शकस्ता में क्या जाने कब कशीद आ जाए। कि सांस रोक के करियो मियां किताबत इश्क। खते शकस्ता में क्या जाने कब कशीद आ जाए। कि सांस रोक के करियो मियां, कि सांस रोक के करियो मियां किताबत इश्क। ये बूदो बाश अलग तो नहीं है मेरी तेरी, ये बूदो बाश अलग तो नहीं है मेरी तेरी। लहू के रंग में यकसा है जब सकाफत इश्क। ये बूदो बाश अलग तो नहीं है मेरी तेरी। लहू के रंग में यकसा है जब सकाफत इश्क। फिर एक रात मुझे नींद क्यों नहीं आई, फिर एक रात मुझे नींद क्यों नहीं आई। मैं जानता ही न था जब कोई अलामत इश्क। फिर एक रात मुझे नींद क्यों नहीं आई। मैं जानता ही न था जब कोई अलामत इश्क। फिर एक रात तो मैं नींद में ही चल निकला, फिर एक रात तो मैं नींद में ही चल निकला। तमाम हो गई उस रात सब रियादत इश्क। फिर एक रात तो मैं नींद में ही चल निकला। तमाम हो गई उस रात सब रियादत इश्क।
फिर एक रोज मुझे नींद से उठाया गया, फिर एक रोज मुझे नींद से उठाया गया, उठा के मुझको अता की गई नियाबत इश्क। फिर एक रोज मुझे नींद से उठाया गया, उठा के मुझको अता की गई नियाबत इश्क। वो शाम का हो सितारा के बाम का हो चराग, वो शाम का हो सितारा के बाम का हो चराग, कभी कभी तो बहुत कम पड़ी वजाहत इश्क। वो शाम का हो सितारा के बाम का हो चराग, कभी कभी तो बहुत कम पड़ी वजाहत इश्क। बहुत से काम किए मैंने जिंदगी में मगर, बहुत से काम किए मैंने जिंदगी में मगर, जो एक सजदा अदा हो गया बहालत इश्क। बहुत से काम किए मैंने जिंदगी में मगर, जो एक सजदा अदा हो गया बहालत इश्क। नजर में दिलता हमेशा सरे मुसाफत इश्क, जुनू तलक ही लिहाजा मिली इजाजत इश्क। अदावत। क्या बात है, बहुत से काम किए मैंने जिंदगी में मगर, जो एक सजदा अदा हो गया बहालत इश्क। बहुत खूबसूरत कामरान नफीस, जिनकी इस वक्त आप शायरी का एक अंदाज देख रहे थे, सुन रहे थे। साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग हमें फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कीजिए, और हमें आपके जो फीडबैक है उसकी वजह से बहुत हौसला भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो आप लोग बराए करम हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल रहिए। और हमारे आज के इस ऑनलाइन आलमी मुशायरे में इस वक्त हमारे पास जो अगले शायर हैं उनके बारे में बताती चलूँ कि आज के इस आलमी ऑनलाइन मुशायरे के मेहमान खुसूसी भी हैं वसी नक्काश साहब, जिनको मैं अब दावत कलाम दूंगी। इनका ताल्लुक लाहौर के एक बहुत मोतबर घराने से है, मरहूम वहीदुल हसन हाशमी के साहिबजादे जनाब वसी नक्काश। वसी हर महफिल की जान समझे जाते हैं और गजलों का मान भी। कहते हैं अजब जमीन थी कि अफकार में नहीं आई, अजब जमी थी कि अफकार में नहीं आई, गजल तो थी मगर अशार में नहीं आई। क्या बात है। वसी नक्काश के बारे में मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि कोई सोच, कोई फिक्र और कोई ख्याल ऐसा नहीं जो वसी नक्काश अपने अशार में ना ढाल सके। जी हाँ, अपने मुनफरिद असलूब और खूबसूरत फिक्र के हवाले से जाने पहचाने शायर हैं, जिनके अशार दिलों में देर तक गूंजते रहते हैं। आइए अब हम दावत कलाम देते हैं वसी नक्काश को। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मैं बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाल अमेरिका के सदर इरफान मुर्तज़ा अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी की मोहतरमा मोना शहाब का कि जिन्होंने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी इस उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। सोने पर सुहागा ये कि फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के उर्दू अदब की चेयरपर्सन डॉक्टर फरज जबीन भी इसमें शामिल हुई हैं और इस उर्दू कॉन्फ्रेंस को और सनद मिल गई है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस उर्दू कॉन्फ्रेंस से उर्दू अदब के तालिब इल्मों को एक नया जाविया और नई फिक्र मिलेगी। गुजारिश की गई कि गज़ल को शेर पेश किए देता हूँ कि मेरी मुश्किल में ही मेरे लिए आसानी है, मेरी मुश्किल में ही मेरे लिए आसानी है, लेकिन है दिल तुझे उसमें भी परेशानी है। और तू खुदा जाने गिनाता है हुनर क्यों मेरे, मैंने तो खाक पे रखी हुई पेशानी है। और इन परिंदों से कहो और कहीं सुस्ता लें, मेरी दीवार पे अब धूप नहीं आनी है। और इसलिए सर पे मेरे कोई भी दस्तार नहीं, मेरी इज्जत मेरे अजदाद की कुर्बानी है। एक नात का शेर भी आ गया कि लोग इस वास्ते करते हैं मोहब्बत मुझसे, मेरी शोहरत मेरे आका की सनाखानी है। और आजिज़ी मुझको खुदा ने मेरे दी है नक्काश, बस इसी बात पे दुनिया मेरी दीवानी है। एक गजल के 3-4 शेर और कि हम इस तरह से कभी ज़र्फ़ आजमाते हैं, हम अपनी प्यास समंदर में फेंक आते हैं, हम इसलिए तुम्हें ख्वाबों में रख नहीं पाए, हम अपनी नींद से पहले ही जाग जाते हैं। और खुदा करे तुम्हें मिल जाए अपना घर इस बार, चलो जमीन को एक बार फिर घुमाते हैं। और इसीलिए तो हमें आईने पसंद नहीं, हम अपना अक्स भी देखें तो टूट जाते हैं। और ज़मी के साथ कभी राब्ता नहीं टूटे, ये राज हमको हमारे शजर बताते हैं।
اور مجھے تو لگتا ہے بچے پلٹ کے آئے ہیں. ہمارے گھر میں پرندے جو چہچہاتے ہیں اور بڑا عجیب زمانہ ہمیں ملا نقاش. ہم اپنے عہد کے بچوں سے خوف کھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی اس اردو کانفرنس کو اللہ تعالیٰ ایک نیا زاویہ دے, ایک نئی جہت دے کہ جس سے تمام ادبی حلقوں میں اس کو پذیرائی نصیب. بہت شکریہ. لیکن ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ اپنے اس مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی مبارکباد کے بعد اب میں ڈاکٹر فرحت جبین فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی کے شعبہ اردو کی چیئر پرسن، ایک ممتاز محققہ، نقاد، شاعرہ اور استاد کی حیثیت سے علمی اور ادبی حلقوں میں نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جانے والی ایسی شخصیت جنہوں نے اردو ادب، تحقیق اور تنقید کے میدان میں کئی اہم تصانیف جو ہیں وہ تحریر کی ہیں اور مختلف قومی اور بین الاقوامی ادبی کانفرنسز میں اپنے مقالات بھی پیش کیے ہیں۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت جو ہے وہ فرما رہی ہیں ڈاکٹر فرحت جبین ورک، جو یقیناً اس ادبی نشست کے وقار اور علمی شان میں اضافہ ہے۔ ان کی علمی بصیرت، شائستہ انداز گفتگو اور اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا صدارتی خطبہ اور ان کے کلام سے ہم اور آپ مل کر استفادہ کریں گے۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ صدر مشاعرہ ڈاکٹر فرحت جبین ورک، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 روزہ برخط عالمی کانفرنس جس کا یہ دوسرا روز ہے اور یہ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے بے حد مؤثر ثابت ہوگی۔ موجودہ دور کا اہم موضوع جو کہ اے آئی سے متعلق ہے، اے آئی کے اردو زبان و ادب پہ اثرات پر گفتگو پر مبنی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا مشاعرہ اسی حوالے کی ایک کڑی ہے۔ دوسرے روز کا یہ دوسرا عالمی مشاعرہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں اس مشاعرے کے انعقاد کے لیے اپنے سمیت محترم عرفان مرتضیٰ صاحب کہ جن کا تعلق اردو رائٹرز سوسائٹی شمالی امریکہ سے ہے اور وہ اس کے صدر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مونا شہاب صاحبہ کے جو ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی روح رواں ہیں، ان کو اس کے انعقاد کے لیے بے حد مبارکباد، پیغام تہنیت پیش کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ کانفرنس آنے والے دنوں میں اپنی اہمیت کو ثابت کرے گی اور آج کے دور میں اے آئی کی اہمیت سے، اس کے بڑھتے ہوئے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ زبان و ادب پہ اس کے اثرات ہیں اور ہر شعبہ زندگی اے آئی سے کسی نہ کسی طرح سے استفادہ کر رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ استفادے کا جو رنگ ہے وہ ہماری زبان و ادب کے لیے مثبت ہے یا منفی۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جو ہم ماحولیات پر بہت کچھ اثر انداز ہوتی قوتیں دیکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں نے ایک نظم کہی ہے، وہ کلام آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کی نظر۔ میں بھی سرسوں جیسی ہوں، میری سرسوں پھول رہی ہے، میں اور سرسوں ایک جیسے ہیں۔ میری سرسوں پھول رہی ہے، میں اور سرسوں ایک جیسے ہیں۔ اس کی باہیں سندل ہار ہیں، اس کی باہیں سندل ہار ہیں، گندل اس کی روئی گویا۔ میں تصویر کا حسن بڑھاؤں، میں تصویر کا حسن بڑھاؤں اور یہ کھیت کا حسن اٹھائے۔ اس کی ہوا ہے، اس کا سورج، میری فضا ہے، میرا منظر۔ عنبر اس کا گہرا نیلا، مہکی مہکی میری شبنم۔ اس کے سنہرے تن پر فدا، دنیا دنیا، عالم عالم۔ پتی پتی اس کی نازاں، شام ڈھلے اور سورج ڈھل کے، شام ڈھلے اور سورج ڈھل کے، سرسوں ناری ہمک کے ساری، جیسے چنبیلی بنتی جائے۔ اس سے بات کروں تو جیسے میری سہیلی بنتی جائے، اس سے بات کروں تو جیسے
मेरी सहेली बनती जाए। आप किसी के भी हो जाएं, ऐसा थोड़ी होने देंगे। आप किसी के भी हो जाएं, ऐसा थोड़ी होने देंगे। गैर की यादों में खो जाएं, ऐसा थोड़ी होने देंगे। सुनने और सुनाने को दो नैना कब से ठहरे हुए हैं। सुनने और सुनाने को दो नैना कब से ठहरे हुए हैं। वो आए अपनी हो जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। वो आए अपनी हो जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। अपना दुख सुख मरना जीना हंसना रोना साझा है। अपना दुख सुख मरना जीना हंसना रोना साझा है। हम जागें और वो सो जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। हम जागें और वो सो जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। और शेर अर्ज है, कितने युगों की खेती करके प्रीत की फसल उगाई है ये। कितने युगों की खेती करके प्रीत की फसल उगाई है ये। आप आए नफरत बो जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। आप आए नफरत बो जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। जीवन की तख्ती पर मंजर जगमग जगमग दिल वाले हैं। जीवन की तख्ती पर मंजर जगमग जगमग दिल वाले हैं। बादल आकर सब धो जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। बादल आकर सब धो जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। और फिर है कि काल हमारी वो ना उठाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। वो ना सुने इस दिल की सदाएं, ऐसा थोड़ी होने देंगे। एक हमारा वक्त है जिसमें हम ही हम हैं इस दुनिया में। एक हमारा वक्त है जिसमें हम ही हम हैं इस दुनिया में। औरों के दुखड़े वो सुनाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। औरों के दुखड़े वो सुनाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। जिसके नाम पे दिन की बस्ती रोशन रोशन रहती है। जिसके नाम पे दिन की बस्ती रोशन रोशन रहती है। हमसे दूर वो शाम मनाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। हमसे दूर वो शाम मनाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। और जिससे सब कुछ कह देते हैं, कोई तो ऐसा होता है। जिससे सब कुछ कह देते हैं, कोई तो ऐसा होता है। हमसे दिल की बात छुपाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। हमसे दिल की बात छुपाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। और मक्ता देखिए, जीती जागती इस दुनिया में क्या फरहत कांच की गुड़िया है। जीती जागती इस दुनिया में क्या फरहत कांच की गुड़िया है। जब तक चाहें दिल बहलाएं, ऐसा थोड़ी होने देंगे। जब तक चाहें दिल बहलाएं, ऐसा थोड़ी होने देंगे। आप सबकी समातों का बसारतों का बेहद शुक्रिया। और एक बार फिर इस बेहद अहम मौजू AI के उर्दू ज़बान व अदब पर असरात, इम्कानात, रोशन इम्कानात और पेश आमदा खतरात और उनके तदारुक के मौजू पर मबनी इस आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए जनाब मोहतरम इरफान मुर्तज़ा साहब और मोना शहाब और मुझ समेत मेरी पूरी टीम, डॉक्टर अकलीमा नाज और डॉक्टर इरम सबा, हम सबको बेहद मुबारकबाद। अल्लाह।
क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत अंदाज मोहतरमा डॉक्टर फरहत जबीन विर्क का, जो कहती हैं कि जीती जागती इस दुनिया में, जीती जागती इस दुनिया में क्या फरहत कांच की गुड़िया है, जब तक चाहें दिल बहलाएं ऐसा थोड़ी होने देंगे। क्या बात है जी, ये तो सोच की बुलंदी और फिक्र और अंदाज में इनके जो मजबूती है उसका क्या कहना। आज के इस मुशायरे में डॉक्टर फरहत जबीन विर्क जो है वो हमारे इस मुशायरे की सदर भी थी, और ख़वातीनो हज़रात, लफ्ज़ों, जज्बों और खूबसूरत एहसासात से सजी ये यादगार महफिल, ये मुशायरा अब अपने इख्तिताम की तरफ चल रहा है, और तमाम ही शुराए कराम और जो हमारे मुंतज़मीन हैं और दुनिया भर से ऑनलाइन शरीक तमाम जो सामीन हैं, आपने यकीनन इस अदबी सफ़र को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत खुश हुए होंगे उससे, और उसको आपकी मौजूदगी से मज़ीद खूबसूरती भी मिली है। दुआ है कि जी इसी तरह इरफान मुर्तज़ा, इनकी टीम, इनके साथ-साथ हमारे मोना शहाब और डॉक्टर फरहत जबीन विर्क, जिन्होंने अदब की ये रोशनी दुनिया भर में फैलाई है, मोहब्बत, तहज़ीब और फ़िक्र के चिराग रोशन किए हैं, इसी तरह अपनी मोहब्बतों का ये सिलसिला जारी और सारी रखें। आप तमाम लोगों का इस मुशायरे में शरीक होने का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। एक बार फिर हमारे साथ इरफान मुर्तज़ा आ चुके हैं, और मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। माशाअल्लाह। मैं राइला, अमूमन एक हमारे यहाँ मुशायरा हो रहा था, तो जब स्टार्ट हो रहा था तो मैंने कहा कि आप जो खवातीन हज़रात आप यहाँ मौजूद हैं और आपने हमारे मुशायरे को 2 चांद लगा दिए। जी 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 जी। तो सबने कहा 2 चांद, मैंने कहा 4 चांद जब लगेंगे जब आप दाद देंगे और खुद भी उसमें शामिल होंगे। बेशक। लेकिन आप देखें कि हमारे जितने भी शोरा यहाँ मौजूद थे, उनका कलाम उसने वाकई 4 चांद लगाए। फिर हमारे जो 7 लोग चलते रहे उन्होंने भी चांद ऐड किए, और आपकी जो निजामत थी उसका तो जवाब ही नहीं। आधा बस है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने शामिल किया, इसके लिए भी शुक्रिया, मुबारकबाद। और मैं आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की तरफ से, ये बड़ी खुशाइन बात है कि लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि ये एक मुश्किल सिलसिला होता है कि ऑनलाइन किसी प्रोग्राम में आप शामिल हों और उसको इतने मतलब जिसे कहते हैं ना दिल से सुने और उसको महसूस हों और उसमें शामिल हो जाएं। बहुत बहुत खूबसूरत। और मैं यहाँ पे माजरत खा हूँ, अपने बहुत 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 प्यारे दोस्त वसी नक्काश थे कि एडिटिंग में कुछ मसला हो गया और उनकी गजल हम यहाँ नहीं सुन सके, देख सकें, लेकिन ये उनका कलाम जो है वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद होगा, यूट्यूब पे मौजूद होगा, और जिसके लिए से एक शेर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुआ था। ये जो मेरे पास, जो आपके पास, जो आपने हमें उनके तारों में भेजा था, वसी नकाश का वो शेर जिसमें उन्होंने कहा था, अजब जमी थी कि अफकार में नहीं आई, गजल तो थी मगर अशार में नहीं आई, वजह थी ये। बहुत ही। और ये हमारे यहाँ जो गजलें कही जा रही है ना, यकीन जाने के इतना खूबसूरत गजलों का शायर है वसी नक्काश, और उससे अच्छा दोस्त भी। वाकई जो आपने तारुफ में कहा था ना कि महफिलों की जान है, तो वाकई महफिलों की जान है। जब भी किसी महफिल में जब दाखिल होता है ना हॉल में, पता चल जाता है वसी नक्काश आ गया। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम अगेन, वंस अगेन आई अपोलोजाइज टू हिम। और लेकिन मैं तमाम शोरा कराम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे मुशायरे में शिरकत की और हमें इज्जत बख्शी। इसके अलावा तमाम लोगों का भी शुक्रिया। असद हैं, नाजिया हैं, बाबा निसार हैं, मोना शहाब भी देखें वहां से उन्होंने, मैं तो समझ रहा था कि हमारी जान बच गई मोना शहाब से, लेकिन वो साथ में चलती रही हमारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहत का, डॉक्टर फरहत की टीम का। और यकीन जाने के ये एक बहुत बड़ा काम था, और जैसे मैंने कहा तकरीबन हमें 4 साढ़े 4 महीने ये काम करने में लगे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें सही तौर पे जा रही हैं। और अब इस मुशायरे के बाद जरूर कहूंगी कि डॉक्टर जो फरहत हैं, इनका जो कलाम था इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका जो यकीन था ना कि ऐसा तो होने ही नहीं देंगे, जब वो कहती है कि आप किसी के भी हो जाए ऐसा थोड़ी होने देंगे, ऐसा थोड़ी होने देंगे। नहीं, ये जो है ना वो परवीन शाकिर की तरदीद कर रही है कि वो मैं तेरे हाथ से तेरी दुल्हन बता जाऊंगी और बनाऊंगी, तो मैं कह नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये बात बहुत खूबसूरत है। तो बहुत आपका बेहद शुक्रिया राहिला, और इतनी खूबसूरती से आपने इस मुशायरे को कंडक्ट किया और 8 चांद लगा दिए।
मेरा यकीन कीजिए मेरे लिए खुद के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है कि इस मुशायरे का हिस्सा हूँ और आप लोगों को एक बार फिर बहुत मुबारकबाद। आइंदा आने वाले सालों में इसी तरह ये सिलसिला आप जारी व सारी रखिए और हम आपके साथ साथ हैं और हमारे जो देखने वाले हैं यकीनन वो भी इस सिलसिले को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ इस प्रोग्राम में मजीद शामिल होंगे। खातिन हज़रात, इसके साथ आप राइला को और मुझे इजाजत दीजिए। कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी आज सारा दिन, मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ मकालात, गुफ्तगू, अदबी गुफ्तगू, मुबाहिसे और उसके साथ साथ शोरा की गज़लें। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग ज़रूर हमसे जुड़े रहें हमारी वेबसाइट urduconference.org पे, और इसके 2 सेक्शन होंगे क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस और दूसरी कॉन्फ्रेंस तो आप तमाम चीज़ों से महसूस हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। अल्लाह हाफ़िज़।